فرض کریں کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے، صحیح، اور وہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ مطلب حریفوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اندرونی سازشیں عروج پر ہیں اور بقا کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت کلاسک سچویشن ہے۔ بالکل، اور بالکل اسی نازک موڑ پر سی ای او کی کرسی پر ایک 12 سال کے بچے کو بٹھا دیا جائے۔ 12 سال، یہ تو ہے نا؟ مطلب کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بچہ نہ صرف اس ڈوبتی ہوئی کارپوریشن کو بچائے گا بلکہ چند ہی سالوں میں اسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دے گا۔ واو! اپنے حریفوں کو خرید لے گا اور پھر ان کے کلچر کو ایک بالکل نئی شکل دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ جی بالکل، تاریخ کی کتابوں میں یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آج ہم اپنے اس تفصیلی جائزے میں تاریخ کے ان اوراق کو کھنگالیں گے اور اس حیرت انگیز شخصیت کی گہرائی میں اتریں گے جسے دنیا سلطان محمد ثانی یا محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ انتہائی مستند اور تفصیلی ہیں، اور آج کے سیشن کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک نوجوان نے نہ صرف وہ شہر فتح کیا جسے صدیوں سے ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ بے وقت ایک بے رحم جنگجو اور نشاط الثانیہ یعنی رینیساں کے فنون کا انتہائی نفیس قدردان بھی ثابت ہوا۔ صحیح، یہ ایک بہت دلچسپ تضاد ہے۔ بالکل، تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ 1444 کا سال ہے اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی اچانک تخت چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے 12 سالہ بیٹے محمد کو سلطان بنا دیتے ہیں۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت کتنا حیران کن تھا؟ یہ صرف حیران کن نہیں تھا، مطلب اگر ہم اس وقت کی جیو پالیٹکس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک تقریباً خودکش قدم لگ رہا تھا۔ واقعی خودکش کیوں؟ کیونکہ یورپ کی صلیبی فوجیں مسلسل عثمانی سرحدوں پر دباؤ ڈال رہی تھیں، اور اندرونی طور پر جو پرانے اور طاقتور ترک امراء تھے وہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوششوں میں تھے۔ اور ایسے نازک وقت میں ریاست کی باگڈور ایک ایسے بچے کو دے دی گئی جس کی اصل تربیت ابھی اماسیا کے علاقے میں شروع ہوئی تھی، جہاں ان کے استاد ان کی تربیت کر رہے تھے، ہے نا؟ جی بالکل، ان کے استاد شیخ آئک شمس الدین، وہ ان کے ذہن میں یہ بیج بو رہے تھے کہ قسطنطنیہ کی فتح ان کی تقدیر ہے۔ صحیح، لیکن عملی طور پر 12 سال کا بچہ ایک اتنی بڑی سلطنت کو کیسے سنبھالتا؟ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہنگری اور صلیبی فوجوں نے امن معاہدہ توڑ دیا اور سیدھا حملہ کر دیا۔ مطلب بحران فوراً ہی شروع ہو گیا۔ بالکل، اور یہیں پر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جس نے محمد ثانی کو تاریخ میں ایک لیجنڈ بنا دیا۔ وہ خط والا واقعہ؟ ہاں، ریاست شدید خطرے میں ہے اور یہ 12 سالہ سلطان اپنے والد کو ایک خط لکھتا ہے۔ اس خط کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنی فوج کی قیادت کریں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آ کر میری فوج کی قیادت کریں۔ واو! لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا۔ مطلب یہ مجھے تھوڑا سا فلمی لگ رہا ہے۔ فلمی؟ ہاں، میرا مطلب ہے کیا واقعی ایک 12 سالہ بچہ اتنا ذہین اور سفارتی طور پر پختہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کاٹدار الفاظ کا انتخاب کرے، یا یہ محض اس کے مشیروں کی کوئی چال تھی؟ آپ کا یہ شک بالکل بجا ہے۔ مطلب تاریخ دانوں، خاص طور پر خلیل آناجیک جیسے مستند مورخین کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ خط دراصل اس وقت کے طاقتور وزیر خلیل پاشا کی حکمت عملی تھی۔ اچھا، تو خلیل پاشا اس کے پیچھے تھے؟ ہاں، کیونکہ خلیل پاشا کو اندازہ تھا کہ یہ 12 سالہ لڑکا اس بحران کو نہیں سنبھال پائے گا اور فوج کا مورال گر جائے گا، لہٰذا سلطان مراد کو واپس لانے کے لیے یہ ایک نفسیاتی دباؤ کا طریقہ تھا۔ صحیح، سمجھ آ رہی ہے بات۔ لیکن یہاں اہم بات یہ نہیں ہے کہ خط کس نے لکھا۔ تو پھر کیا اہم ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے کا اس نوجوان محمد کی نفسیات پر کیا اثر ہوا۔ 1446 میں جب ان کے والد باقاعدہ تخت پر واپس آ گئے تو محمد کو واپس مانیسا بھیج دیا گیا۔ یعنی ان سے تخت واپس لے لیا گیا؟ بالکل، اور یہ ان کے لیے محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی ذاتی ہزیمت تھی۔ یعنی وہ محسوس کر رہے تھے کہ انہیں ناکام قرار دے کر نکال دیا گیا ہے۔ 100%، اور اس وقتی طور پر تخت سے ہٹائے جانے کے تجربے نے ان کے اندر ایک شدید قسم کی سیاسی پختگی پیدا کر دی۔ اس واقعے نے ان کے کندھوں پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا کہ اب انہیں خود کو ثابت کرنا تھا۔
कि वो कोई आम शहजादे नहीं है। बिल्कुल, उन्हें यह साबित करना था कि वो महज अपने वालिद के साए में जीने वाले शहजादे नहीं हैं, बल्कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक कोई ना कर सका। और यही वो आग थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी और सोच को एक ही हदफ की तरफ मोड़ दिया। और वो हदफ किस्तनतीनिया की फतह। जी, और वो हदफ था किस्तनतीनिया। तो ये साबित करने की इसी शदीद ख्वाहिश ने उन्हें 1451 में दोबारा तख्त नशीन होने के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बना दिया। बिल्कुल मुख्तलिफ। अब वो 12 साल के नाकाम शहजादे नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल तैयारी के साथ आने वाले हुक्मरान थे। और उन्होंने आते ही जो इक़्तिदामात किए वो वाज़े कर रहे थे कि वो किस हद तक जा सकते हैं। सही। हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने बॉस्फोरस के किनारे रूम इली हिसार नामी किला तामीर करवाया। जरा इसके पीछे मौजूद हिकमत अमली को समझाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि ये कुस्तुनतुनिया का गला घोटने की बाकायदा तैयारी थी। रूम एली हिसार की तामीर वाकई एक लॉजिस्टिक और अस्करी मौजला था। उन्होंने ये किला उस जगह बनाया जहां बॉस्फोरस का समुद्री रास्ता सबसे ज्यादा तंग था। अच्छा। और महज 4 महीने के कलीज अरसे में हजारों मजदूरों ने दिन रात काम करके इसे खड़ा कर दिया। 4 महीने? ये तो बहुत कम वक्त है। बिल्कुल। और इसका मकसद क्या था? कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था जिसकी दीवारें खुश्की की तरफ से तो नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, लेकिन इस शहर को खुराक और रसद बहरा अस्वद यानी ब्लैक सी से आने वाले जहाजों के जरिए मिलती थी। तो वो उस रास्ते को ब्लॉक करना चाहते थे। एग्जैक्टली। मोहम्मद सानी ने इस किले के जरिए इस लाइफलाइन को काट दिया। अब कोई भी जहाज उस्मानियों की इजाजत के बगैर वहां से गुजर ही नहीं सकता था। और इन्होंने उसे अमली तौर पर साबित भी किया है ना। जी। जब एक वेलिटिशाई जहाज ने वहां रुकने का इशारा नजरअंदाज किया तो सुल्तान की तोपों ने उसे एक ही गोले से समुंदर बुर्द कर दिया और उसके मल्लाहों को पकड़कर इबरत का निशान बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये तो सीधा सीधा खौफ पैदा करने की हिकमत अमली लगती है। ये खालिस्तन नफ्सियाती जंग थी, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो बाज़ंतीनियों और उनके यूरोपी इत्तेहादियों को ये पैगाम दे रहे थे कि पुराने मुआहदे अब खत्म हो चुके हैं, कि अब मेरी मर्जी चलेगी। बिल्कुल। बॉस्फोरस अब बैनुल अक़वामी पानी नहीं रहा, ये उनका इलाका है। ये शहर को तन्हा करने की एक इंतहाई सोची समझी और बेरहम हिकमत अमली थी। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब तन्हा करने की ये हिकमत अमली अपने उरूज पर पहुंची और 1453 में बाकायदा मुहासरा शुरू हुआ, तो हमें तारीख का एक ऐसा वाक़या देखने को मिलता है जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। वो खुश्की पर जहाज चलाने वाला वाक़या। हाँ, मतलब बिज़ंतीनियों ने शहर को समुद्री हमले से बचाने के लिए गोल्डन हॉर्न के दहाने पर एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर बांधी थी। सही। उस जंजीर की वजह से कोई भी उस्मानी जंगी जहाज शहर की कमजोर समुद्री फसील तक नहीं पहुंच सकता था। तो मोहम्मद सानी ने क्या किया? उन्होंने जंगल के रास्ते लकड़ी के तख्ते बिछवाए, उन पर जानवरों की चर्बी और तेल मिलवाया और रात के अंधेरे में कोई 8 इसी के करीब जंगी जहाज़ों को खुश्की के रास्ते खींचकर गोल्डन हॉर्न के समुंदर में उतार दिया। ये तारीख के सबसे हैरानकुन अस्करी कारनामों में से एक है। बिल्कुल। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई जदीद फौज दुश्मन के अरबों डॉलर के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने के बजाय रातों रात उसे बाईपास करके उनके बेडरूम तक पहुंच गई हो। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। लेकिन इतनी बड़ी मशक्क़त उठाने की असल वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ फौजी ज़रूरत थी? फौजी ज़रूरत तो यकीनन थी। उन्हें शहर की दीवारों को हर तरफ से निशाना बनाना था ताकि बाज़ंतीनी फौज बट जाए। लेकिन अगर हम इसकी नफ्सियाती अहमियत पर गौर करें तो वो ज़्यादा गहरी है। वो कैसे? ज़रा तसव्वुर करें, शहर के लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि जिस समंदर को वो अपनी सबसे बड़ी हिफाजत समझ रहे थे, जिसके आगे जंजीर बंधी हुई थी, हाँ। वो समंदर दुश्मन के जहाज़ों से भरा पड़ा है। ओह, वो तो वैसे ही हिम्मत हार गए होंगे। बिल्कुल। इस इक़दाम ने बाज़ंतीनियों के आसाब तोड़ दिए। इसने ये साबित किया कि ये नौजवान सुल्तान कोई रिवायती जंग नहीं लड़ रहा, वो उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल हटकर सोच सकता है। जब दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, तो आधी जंग तो वहीं जीती जाती है। क्या बात है।
और आखिरकार 57 दिन के तवील मुहासरे, उर्बान की बनाई हुई देही कल तोपों की बमबारी और शदीद खूनी झड़पों के बाद 29 मई 1453 को कुस्तंतुनिया की दीवारें गिर गईं। जी 1000 साल पुरानी बाइजेंटीनी सल्तनत का खात्मा हो गया। हमारे ज़राए एक बहुत ड्रामाई मंजर पेश करते हैं कि जब 21 साला सुल्तान शहर के बीचों बीच कैसर के पुराने और खंडरनुमा महल में दाखिल हुए, हाँ, तो वहाँ की वीरानी देखकर उनकी जुबान से मशहूर फारसी शायर शेख सादी का शेर निकला कि कैसर के महल में मकड़ी जाले बन रही हैं और अफरासियाब के किले में उल्लू नौबत बजा रहा है। ये एक बहुत ताकतवर लम्हा है। मतलब एक फातेह जो खून रेजी के बाद शहर में दाखिल हुआ है, वो तकब्बुर के बजाय दुनिया की बेसबाती पर फलसफियाना गौर कर रहा है। हाँ, वो खुशी से पागल नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। उसे एहसास है कि जिस सल्तनत ने 1000 साल तक दुनिया पर राज किया, आज उसका महल खंडर बन चुका है। और ये शेर महज एक शायराना तबसरा नहीं था, बल्कि इस बात का अक्कास था कि मोहम्मद सानी एक कसीरुल जहती सोच रखने वाले इंसान थे, और उनकी इसी कसीरुल जहती सोच ने इस फतह के बाद के हालात को भी तय किया। बिल्कुल। अगर हम आज की कॉरपोरेट दुनिया की मिसाल लें, तो जब कोई बड़ी कंपनी अपने सबसे बड़े हरीफ को खरीदती है, तो अक्सर वो इसका ब्रांड, उसका नाम और उसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटा देती है। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन मोहम्मद सानी ने कुस्तुंतनिया को तबाह करने या उसकी शनाख्त मिटाने के बजाय खुद को रोमन एम्पायर का वारिस करार दे दिया। उन्होंने बाकायदा कैसर रूम का लक़ब इख्तियार किया। जी, कैसर रूम। इसकी क्या वजह थी? मेरा मतलब है, वो तो एक मुस्लिम फातेह थे, उन्हें कैसर बनने की क्या जरूरत थी? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि मोहम्मद सानी की सोच महज एक इलाकाई मुस्लिम रियासत तक महदूद नहीं थी। अच्छा? वो खुद को सिकंदर आजम की तरह एक आलमी हुक्मरान यानी यूनिवर्सल मोनार्क के तौर पर देखते थे। ओह, तो ये एक ग्लोबल विजन था होने का दावा करके वो दरअसल पूरी मगरबी दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे कि अब सल्तनत रूम का नया मरकज उस्मानी दरबार है, और वो महज मशरिक के सुल्तान नहीं बल्कि मगरिब के शहंशाह भी हैं। और उन्होंने इस दावे को अमली जामा पहनाने के लिए जो इंतजामी कदम उठाए, वो उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे की सोच थे, बहुत एडवांस्ड। जैसे उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च को बहाल किया, एक नया पेट्रियार्क मुकर्रर किया और ईसाइयों और यहूदियों को उनके अपने मजहबी कवानीन के तहत जिंदगी गुजारने की आज़ादी दी, जिसे हम तारीख में मिल्लत सिस्टम के नाम से जानते हैं। जी, मिल्लत सिस्टम। मुझे ये समझाएं कि एक फातिह को मुफ्तूह कौम के मजहबी रहनुमाओं को इतनी ताकत देने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये एक तरह से बगावत को दावत देना नहीं था? बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन ये दरअसल बगावत को कुचलने का सबसे मौसर और पुरअमन तरीका था। वो कैसे? अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो सुल्तान को एक आलमी दारुल हुकूमत चलाना था जिसकी मईशत, तिजारत और फ़नून पर उन गैर मुस्लिमों की गहरी गिरफ्त थी। सही, वो सारा बिजनेस तो वही लोग कर रहे थे। बिल्कुल। अगर वो उन्हें दबाते या निकाल देते तो शहर एक वीराना बन जाता। नया पेट्रियार्क मुकर्रर करके सुल्तान ने दरअसल ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को बराह रास्त रियासत के मातहत कर लिया। ओह। पेट्रियार्क अब सुल्तान का मुकर्रर करदा अहलकार था, जिसका मतलब ये था कि ईसाई आबादी की वफादारी अब रोम के पोप की बजाय उस्मानी सुल्तान से जुड़ गई थी। ये एक इंतहाई ज़हीन सियासी चाल थी। कमाल है। और उनकी ये आफाकी सोच सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं थी। हमारे ज़राए बताते हैं कि सुल्तान की ज़ाती लाइब्रेरी में 8000 से ज़्यादा किताबें थीं, जिनमें यूनानी, लातीनी और फारसी का अजीम ज़ख़ीरा मौजूद था। जी, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने ईसाई मवादरात जमा किए, जिनमें यूहन्ना यानी जॉन द बैप्टिस्ट की मुबैना खोपड़ी और वो पत्थर भी शामिल था जिस पर हज़रत ईसा की पैदाइश मानी जाती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प तफसील है। और सुने, जब वेनिस के लोगों ने इस पत्थर के बदले 1 लाख ड्यूकाट की पेशकश की तो सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मशहूर इतालवी मसव्वर जेंटाइल बेलिनी को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो इनका पोर्ट्रेट बना सके। तो क्या ये महज फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत थी या ये भी कोई सफारती हथियार था?
इसमें दोनों आंसर शामिल थे। उन्हें वाकई क्लासिकी इल्म, फलसफे और निशातो सानिया के फनून से गहरी दिलचस्पी थी। अच्छा। लेकिन बलिनी को बुलाना या मगरबी तर्ज के तमगे बनवाना ये एक वाज़ेह सफारती इशारा था। मगरिब के लिए? जी, वो यूरोप के बादशाहों को दिखा रहे थे कि मैं कोई जंगली हमलावर नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा तहजीब याफ्ता, पढ़ा लिखा और तुम्हारी सकाफत को समझने वाला आलमी शहंशाह हूँ। वो फन को अपने आलमी इमेज की तामीर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि एक तरफ वो तहजीब, आर्ट और मुख्तलिफ सकाफतों के मिलाप की अलामत बन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी भी इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए महज मुसव्वरी और किताबें तो काफी नहीं होती। जाहिर है। अंदरूनी तौर पर इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे निज़ाम बनाए जो आज के दौर के हिसाब से इंतहाई खौफनाक मालूम होते हैं। आप दियोशरी में और उसके बाद के कवानीन की बात कर रही हैं? जी, मिसाल के तौर पर पुराने तुर्क उमरा की ताकत को ख़त्म करने के लिए दियोशरी में निज़ाम का इस्तेमाल। इस निज़ाम के तहत सल्तनत के ईसाई इलाकों से नौजवान लड़कों को रियासत अपनी तहवील में लेती, उन्हें मुसलमान करती और फिर मेरिट की बुनियाद पर उन्हें आला फौजी और इंतज़ामी ओहदों पर लगाती थी। इस पूरे मैकेनिज्म का असल मकसद क्या था? दियोशरी में निज़ाम बज़ाहिर एक जालमाना अमल लगता है, लेकिन उस्मानियों के लिए ये मरकजियत यानी सेंट्रलाइजेशन कायम करने का बेहतरीन हथियार था। वो कैसे? देखिए, पुराने तुर्क उमरा के पास जायदादें थीं, उनके कबीले थे, उनके अपने मफादात थे। वो अक्सर सुल्तान की ताकत को चैलेंज करते थे। हाँ, उनकी अपनी एक पावर बेस थी। बिल्कुल। इसके बरक्स दियोशरी में से आने वाले लड़कों की वफादारी सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के साथ होती थी, क्योंकि उनका तो कोई और था ही नहीं। एग्जैक्टली। उनका कोई खानदान, कोई कबीला या जमीन नहीं थी। वो सुल्तान के जाती गुलाम समझे जाते थे और सिर्फ अपनी सलाहियत और मेरिट की बुनियाद पर वजीर आजम के ओहदे तक पहुंच सकते थे। वाह। इस तरह मोहम्मद सानी ने एक ऐसी इंतजामिया और फौज खड़ी कर दी जैसे जेनिसरी, जिसकी डोरियां सिर्फ उनके अपने हाथ में थी। ठीक है, ये निज़ाम इक़्तिदार को मजबूत करने की समझ में आता है, लेकिन मुझे एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। जी जी, बताएं। हम एक तरफ बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो मुसव्वरी का शौकीन है, जो मजहबी रवादारी की बुनियादें रख रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ वही शख्स अपनी सल्तनत का वो मशहूर कानूनी ज़ाब्ता मंजूर करता है जिसे ब्रादर कशी का कानून यानी लॉ फ्रेट्रीसाइड कहा जाता है। जी, ये तारीख का एक बहुत तारीख पहलू है। मतलब जो शहजादा भी तख्त पर बैठेगा वो रियासत के मफाद के लिए अपने ही सगे भाइयों का कत्ल करवा सकता है, जिनमें शीर खार बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और रियासत के उलमा की अक्सरियत ने इसे बाकायदा जायज़ करार दिया। मैं आपसे पूछती हूँ कि इस तज़ाद को कैसे हजम किया जाए? मतलब क्या वाकई ताकत का नशा इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि खूनी रिश्ते और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रहती? एक रेनेसांस का कदरदान आर्टिस्टिक इंसान बच्चों के कत्ल का कानून कैसे बना सकता है? आपकी ये हैरानी बिल्कुल फितरी है, लेकिन इस सवाल का जवाब ताकत के नशे में नहीं बल्कि तारीख के एक बहुत ही तल्ख और खौफनाक तजुर्बे में छुपा है। वो कौन सा तजुर्बा? मोहम्मद सानी ने अपने बचपन में और उनके खानदान ने उनसे पहले उस्मानी वक्फा यानी ऑटोमन इंटररेग्नम का दौर देखा था। अच्छा, ये तो उनके दादा के दौर की बात है। जी, ये एक ऐसी खाना जंगी थी जो उनके दादा के दौर में तकरीबन 8 से 11 साल तक चली थी। शहजादों ने अपने हामियों के साथ मिलकर सल्तनत के टुकड़े कर दिए, भाइयों ने भाइयों के खिलाफ फौजें खड़ी कर दी, गांव के गांव तबाह हो गए और लाखों बेगुनाह किसान और शहरी मारे गए। सल्तनत उस्मानिया मुकम्मल तबाही के किनारे खड़ी थी। यानी वो इस खाना जंगी के खौफ को अपने जहन से निकाल नहीं पाए थे। बिल्कुल। मोहम्मद सानी के नज़दीक, जिससे उन्होंने अपनी कानूनी दस्तावेजात में निज़ाम आलम का नाम दिया, यानी दुनिया का नज़्म ज़ब्त और रियासत की बका, वो सबसे बालातर थी। यहाँ इखलाकियात और रियासत की बका का सीधा टकराव था। उनका नज़रिया ये था कि क्या ये बेहतर नहीं है कि तख्त के दावेदार चंद शहजादों को कुर्बान कर दिया जाए, बजाय इसके कि पूरी सल्तनत को एक ऐसी खाना जंगी में झोंक दिया जाए जिसमें लाखों आम इंसानों का खून बहे। एक तरह से वो इसे एक कमतर बुराई समझ रहे थे। बिल्कुल। ये एक सर्द महर, बेरहम मगर एक सफाकाना हद तक प्रैक्टिकल यानी अमली फैसला था। और तारीखी तौर पर देखें तो इस कानून ने वाकई उस्मानी सल्तनत को अगली कई सदियों तक तकसीम और तबाहकुन खाना जंगियों से बचाए रखा।
یہ اقتدار کی وہ بھیانک قیمت ہے جو شاید تاریخ کے صفحات پر تو منطقی لگتی ہو لیکن انسانی سطح پر آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈالول، جب اس بے رحم مرکزیت اور دیوشرے میں جیسے نظاموں کے تحت سلطان کے ہاتھ میں مطلق طاقت آ گئی تو وہ اپنے بیرونی دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ جی، فتوحات کا ایک نیا سلسلہ۔ بالکل، قسطنطنیہ تو ان کے عالمی خواب کی صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ بلکان، سربیا، بوسنیا اور ٹریپزونٹ کی مہم بہت مشہور ہے۔ ہاں، ٹریپزونٹ کی مہم کے دوران ان کا ایک جملہ ان کی شخصیت کی ایک اور پرت کھولتا ہے۔ کون سا جملہ؟ جب وہ دشوار گزار پہاڑوں پر پیدل چل رہے تھے تو آزون حسن کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ وہ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اچھا۔ تو سلطان نے جواب دیا کہ یہ سختیاں وہ اسلام کی تلوار ہونے اور غازی کہلانے کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اور ان طویل مہمات کے دوران ان کا واسطہ اپنے دور کے کچھ انتہائی خطرناک اور سفاک دشمنوں سے بھی پڑا۔ جی، ان میں سب سے نمایاں البانیہ کے سکندر بیگ تھے اور اس سے بھی بڑھ کر ولاچیا کے حکمران ولاڈ دی امپیلر تھے، جنہیں آج دنیا ڈریکولا کے کہانیوں کی بنیاد مانتی ہے۔ ولاڈ دی امپیلر کا ذکر آتے ہی تاریخ واقعی فکشن سے زیادہ بھیانک معلوم ہونے لگتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جب عثمانی قاصدوں نے ولاڈ کے دربار میں سلطان کے احترام میں اپنی پگڑیاں اتارنے سے انکار کیا تو اس نے وہ پگڑیاں کیلوں کے ساتھ ان کے سروں میں ٹھوک دیں۔ یہ ایک انتہائی وحشیانہ حرکت تھی۔ اور پھر وہ رات کی تاریکی میں کیا گیا حملہ جس کا واضح مقصد خود سلطان محمد کو قتل کرنا تھا، جسے تاریخ میں نائٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ جی، اگر ہم اس واقعے کو آج کی جیو پالیٹکس سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو بڑی طاقتوں کے درمیان بفر زون پر کنٹرول کی جنگ ہو رہی ہو اور وہاں پراکسی حکمران بٹھائے جا رہے ہوں۔ بالکل وہی حکمت عملی تھی۔ سلطان نے بالآخر ولاڈ کو شکست دی اور اپنا وفادار حکمران وہاں تخت پر بٹھایا۔ ولاڈ کے ساتھ یہ تصادم یقیناً بہت خونی تھا اور اس نے یورپ میں عثمانی طاقت کا ایک خوف بٹھا دیا۔ لیکن اگر ہم محمد ثانی کے اصل خواب کی طرف واپس جائیں، وہ قیصر روم والا خواب؟ جی، ان کا قیصر روم ہونے کا دعویٰ، اس کی سب سے بڑی جھلک ہمیں 1480 کی مہم میں نظر آتی ہے۔ 1480؟ اچھا۔ اس سال عثمانی فوجوں نے اٹلی کے ساحلوں پر حملہ کیا اور اوٹرانٹو کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اوٹرانٹو جو کہ اٹلی میں ہے؟ بالکل۔ اب اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ البانیہ اور ہنگری کے محاذ چھوڑ کر اچانک اٹلی پر حملہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ہاں، وہ تو بالکل دوسری طرف ہے۔ دراصل اوٹرانٹو پر قبضہ محض ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ سیدھا روم کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم تھا۔ وہ سیدھا روم پر حملہ کرنا چاہتے تھے؟ جی ہاں، وہ واقعی روم پر قبضہ کر کے اپنی عالمی سلطنت کے خواب کو حتمی شکل دینا چاہتے تھے۔ اس حملے کی وجہ سے پورے یورپ اور خاص طور پر روم اور پوپ کے دربار میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یعنی وہ اپنے نظام عالم کے تحت پورے یورپ کو یکجا کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بالکل قریب۔ لیکن پھر تاریخ کا رخ ایک بار پھر اچانک بدل جاتا ہے۔ 1481 میں جب سلطان محمد ثانی کی عمر صرف 49 سال تھی، وہ ایک اور عظیم مہم کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ راستے میں اچانک بیمار پڑے اور انتقال کر گئے۔ اور یہ بہت پراسرار موت تھی۔ ہاں، کچھ مورخین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ انہیں ان کے اپنے ہی بیٹے بایزید کے اشارے پر کسی اٹالوی طبیب کے ذریعے زہر دے دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت مضبوط تھیوری ہے تاریخ میں۔ اور ان کی موت کی خبر کا یورپ میں جو رد عمل تھا وہ ان کی طاقت کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ جی، وینس میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ عظیم عقاب مر گیا ہے اور پورے یورپ کے گرجوں میں جشن کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ یہ جشن اس ریلیف اور سکون کی علامت تھا کہ وہ خطرہ ٹل گیا جو ان کی تہذیب کو مکمل طور پر اپنے اندر ضم کرنے والا تھا۔ بالکل۔ 29 سال کی حکمرانی میں انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، ایسے قانونی اور انتظامی ڈھانچے کھڑے کیے جو صدیوں تک قائم رہے اور عثمانی سلطنت کو ایک ناقابل تسخیر عالمی طاقت میں بدل دیا۔ آج کے سیشن میں ہم نے اس شخص کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جو انہیں ایک پیچیدہ لیکن انتہائی با اثر حکمران بناتے ہیں۔ لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کیجیے۔ جی۔
1481 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी फौजें इटली के साहिलों पर कदम जमा चुकी थीं। वो रोम को फतह करने के बिल्कुल करीब थे। बिल्कुल। अब जरा इसी 12 साला बच्चे के बारे में सोचें जिसे हमने शुरू में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के तौर पर तस्वुर किया था। कहां से बात कहां पहुंच गई। हाँ, अब वो 49 साल का एक इंतहाई पुख्ता, बेरहम और दुनिया को एक नई शक्ल देने वाला शहंशाह था। बेशक। अगर वो उस पुरस्रार मौत का शिकार ना होते और उन्हें अपनी जिंदगी की बिसात पर महज 10 साल और मिल जाते, वाह, ये सोचने वाली बात है। तो क्या होता? रोम फतह हो चुका होता, मगरबी और मशरकी यूरोप एक ही सल्तनत के झंडे तले होते। बिल्कुल मुमकिन था। आज का यूरोप कैसा दिखता? आज दुनिया का नक्शा, मगरबी तहजीब का कल्चर और मजहब, क्या वही होता जो आज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका हतमी जवाब तो हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये यकीनन देर तक हमारे जहनों के दरवाजों पर दस्तक देता रहेगा।